آج میں بہت خوش تھی۔ میرا بیٹا آج دولہا بنا کھڑا تھا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی تیار کی تھی۔ اس کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب زاہد میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میں پریشان تھی کہ آخر وہ ایک دم اپنی نئی نویلی دلہن کو کمرے میں چھوڑ کر یہاں کیوں آ گیا ہے، اور جب اس نے کہنا شروع کیا تو مجھے لگا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ یہ تو میرا زاہد نہیں تھا جس کی تربیت میں نے کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا جو اپنی نوکری اور کامیابی کے زوم میں بول رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، کیسی ماں ہوں میں جس نے اپنے افسر بیٹے کے لیے ایک کالی لڑکی کو چنا ہے۔ میرے شوہر کا انتقال ہوئے ایک عرصہ بیت چکا تھا۔ میرا بیٹا زاہد سبھی صرف 10 سال کا تھا جب میرے میاں مجھے داغ مفارقت دے گئے۔ کئی رشتے آئے لیکن میرے انکار کو اقرار میں کوئی نہ بدلوا سکا۔ گاؤں کی حویلی میں کام کر کے میں نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی تھی۔ سارا دن حویلی میں کام کرتی اور پھر شام میں گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھاتی۔ اس کے عوض لوگ چاول اور گندم وغیرہ دے جاتے اور گزر بسر ہو جاتا۔ میری اکلوتی امید میرا زاہد تھا جو آہستہ آہستہ کامیابی کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہا تھا۔ دنیا کے اس سرد و گرم سے بچاتے اسے بڑا کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میں نے کیا تھا، اور آج وہ ایسے مقام پر کھڑا تھا جہاں ہر بیٹے کی ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اس کی نوکری لگتے ہی سب کو مٹھائی بھیج کر شکریہ ادا کرنے کے بعد میں نے اس کے والد کی قبر پر گئی تھی۔ سارے گاؤں کو پتہ لگ گیا تھا کہ بیوہ زبیدہ کا بیٹا افسر لگ گیا ہے۔ اس کی نوکری لگتے ہی اب میری آس تھی کہ اپنے گھر میں روشنی کے آؤں، بہو کے روپ میں ایک ایسی بیٹی ہو جو میرے سارے دکھ سکھ بانٹ لے۔ میں ایسی لڑکی کی تلاش میں سرگرداں تھی جو میرے بیٹے کو دین و دنیا دونوں سے جوڑ کر رکھے، اس کی ساری محرومیاں دور کر دے، جو ہمارے مکان کو گھر بنا دے۔ کئی جگہ جوتیاں چٹکھائیں، میری نکاح انتخاب اس گوہر نایاب پر جا ٹھہری جو بالکل میرے ہیرے کے لیے ہی بنی تھی۔ میری بھانجی سیرت ایک BA پاس لڑکی تھی جس میں ہر گن تھا۔ بات کرتی تو لگتا اس سے میٹھا لہجہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ لڑکی طے کرتے ہی میں نے زاہد کو اپنے سامنے بٹھایا تھا اور بتایا کہ تمہارے لیے ایک ایسی لڑکی پسند کی ہے۔ اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب زاہد نے نام سننے سے بھی پہلے ہاں کہہ دیا اور کہا کہ ماں سے بہتر اپنے بیٹے کو کون جان سکتا ہے۔ آپ بہتر جانتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کے شایان نشان کون ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ وہی تلاش کریں گی جو میرے لیے بہترین ہوگا۔ زاہد کی ان باتوں نے مجھے اتنا مان دیا کہ میں سجدے میں گر کر اپنے رب کے حضور اتنا روئی، اس وقت کے لیے معافی مانگی جب میں نے کبھی اس سے شکوہ کیا تھا۔ آج تو میں 7ویں آسمان پر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے دین و دنیا دونوں مل گئی۔ میں سرخرو ہو گئی، میری جوانی کی محنت رائے گاہ نہیں گئی اور مجھے میرا صلہ مل گیا۔ زاہد کی ہاں ہوتے ہی میں نے رشتہ پکا کیا اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ زاہد نے ابھی اپنی دلہن کا نام جاننے سننے یا اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ایک ایک چیز شہر سے خریدی جسے سارے گاؤں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ زاہد نے بھی ہر چیز میں ہاتھ کھلا رکھا تھا، ہر آنکھ میں رشک تھا۔ ہم دونوں ہی اس کے نئے وجود کے استقبال کی تیاری بہت اچھے سے کر رہے تھے۔ زاہد ہفتے میں 5 دن شہر میں ہوتا اور 2 دن گاؤں۔ میں نے سوچا کہ سیرت بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ زاہد نے سر توڑ کوشش کی تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں، مگر میں اپنی آبائی جگہ کو کیسے چھوڑ سکتی تھی جہاں میں دلہن بن کر آئی تھی، جہاں میرا زاہد جوان ہوا تھا اور جہاں میرے سر کا سائے مدفون تھا۔ میں نے شہر جا کر وہ گھر خود سجایا، ایک ایک کونا سجاتے ہزاروں خواب میری آنکھوں میں جھلملا رہے تھے۔ لینے گئی اس نے کئی رنگ اپنی مرضی سے بہو کے لیے خریدے جو بیش قیمت تھے۔ وہ سب گہرے رنگ تھے جنہوں نے مجھے اپنی جوانی یاد دلا دی۔ بارات کے بعد دلہن کو گاؤں والے گھر میں رخصت ہو کر آنا تھا، پھر وہ دونوں گھومنے کاغان ناران جاتے اور وہاں سے اپنے آشیانے میں جہاں انہیں اپنی زندگی گزارنا تھی۔ آخرکار کئی دنوں کے انتظار کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب اس سورج کو ہمارے گھر اترنا تھا۔ رخصتی کے بعد وہ سارا راستہ روتی آئی تھی۔ میں نے اسے گلے لگایا اور ویسا پیار کیا جیسا اپنی بیٹی کو کرتی۔ آج میں نے اسے اپنے گھر کے ساتھ اپنے دل میں بھی جگہ دے دی تھی۔ سب رسمیں ہو چکی تھیں۔ اس نازک وجود کو کئی زمانی مسکراہٹوں کے حصار میں کمرے میں بھیج دیا گیا۔ زاہد کے کمرے میں جاتے ہی مجھے لگا جیسے میرا فرض ادا ہو گیا۔ آج میں اپنے مرحوم شوہر کے سامنے سرخرو ہو گئی تھی۔ ایک بیوہ ماں کے ہاتھوں پر پروان چڑھا زاہد جس نے گھروں میں کام کر کے اگلا تھا، وہ بچہ آج ایک لڑکی کو شادی کی رات دھتکار کر اس لیے آیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے حلقے میں چل نہیں پائے گی۔ وہ اس کے سجے سورے روپ کو نظر انداز کر کے اس کے رنگ پر تھوک آیا تھا۔ زاہد نے ولیمے سے انکار کر دیا۔ میں تو اب بھی تنبا خود سی انہی الفاظ میں جکڑی ہوئی تھی۔ ساری برادری ہمارے گھر میں اکٹھی تھی، نیچے لڑکیاں گیت گا رہی تھیں اور میرے دل اور سیرت کی زندگی دونوں میں صفِ ماتم بچ چکا تھا۔ میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا رشتہ داروں کو منع کر دوں یا پھر زاہد کو منا لوں، اور میں نے دوسرا راستہ چنا تھا۔ اس کے قدموں میں اپنا دوپٹہ رکھتے کئی آنسو گر کر ٹوٹے۔ اپنے گھر کی لاج کی بھیک مانگتے میں گڑ گڑا رہی تھی۔ آخر اس نے حامی بھر لی۔ اگلے دن سیرت کے چہرے سے جیسے سارا دلہنیا پن غائب ہو چکا تھا۔ شوخ سی سیرت ایک رات میں ویران عمارت لگ رہی تھی۔ وہ کالی نہیں تھی، ہاں سانولی ضرور تھی۔ اس کی کتھئی سی رنگت ایک نظر میں دل موہ لیتی اور یہی میرے دل میں بھی گھر کر گئی تھی۔ ولیمے کے بعد وہ دونوں کہیں
घूमने भी नहीं गए थे और अब एक नई परेशानी आन खड़ी हुई। शाहिद ने सीरत को साथ लेकर जाने से मना कर दिया। एक और बात यह कि जब से वो लोग, सीरत ने घूंघट ओढ़ रखा था, जो कि मेरे कहने पर भी उसने नहीं उतारा। मुझे तशवीश हुई, लेकिन जाहिद के सामने कुछ भी पूछना लफ्ज़ रायगां करना था। शाम में वो उसे छोड़कर शहर चला गया। उसके जाने के बाद भी खाना खाकर मैं अपने कमरे में आई। लेटने के बाद अपना तकिया सीधा करने लगी तो मेरी नजर एक कागज पर पड़ी। मैंने हैरानी से खोला और पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें बाहर आ गईं। वो जाहिद का खत था जिसमें उसने लिखा था कि अब वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने माँ होने का हक अदा नहीं किया और एक ऐसी लड़की इसके पल्ले डाल दी जो हर लिहाज से उससे कमतर है। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर वो माशरे में नहीं चल सकती, इसलिए इस दागदार लड़की को वो यहाँ छोड़कर जा रहा है। ये मेरी बहू है क्योंकि मैं इसे लाई थी, इसलिए इसे मैं अपने पास रखूं। खर्चा हर माह मिलता जाएगा, अब राब्ता करने की जरूरत नहीं। जाहिद के अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर चमके थे, मगर लफ्ज़ दागदार मेरे दिमाग में बैठ ने ये बात क्यों की। मैं फौरन उठी, सीरत के कमरे में आ गई। वो इस वक्त सजदे में थी, जाने क्या मांग रही थी कि सजदा इतना लंबा हो गया। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। मैं खड़ी उसकी नमाज खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जब वो सजदे से उठी, मैं उसे देखकर दंग रह गई। उसके चेहरे पर मौजूद निशान उस वक्त कुछ और ही कह रहे थे। मैं दंग से उसे देखती रही, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसके दिल में जाने कितना गुबार था कि वो भी फूट फूट कर रो दी। मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो वो सर झुका गई, मगर फिर मेरे सर पर कहना शुरू किया। हम लोग शहर गए तो जाहिद का रवैया मेरे साथ बहुत अजीब सा रहा। वो बिल्कुल खामोश रहते थे और अजीब सी नजरों से मुझे देखते थे। मैं कुछ कहती तो नजरअंदाज कर देते। जो कपड़े बरी में आए थे, एक दिन वो निकाल कर पहनने लगी तो इन्होंने मेरे हाथ से वो कपड़े छीने और फाड़ने लगे। मैंने बहुत रोका, लेकिन पता नहीं कौन सा भूत उन पर था। सब गहरे रंग फाड़कर इन्होंने कहा कि अब से तुम हल्के रंगों के अलावा कुछ भी नहीं पहनोगी, ये रंग तुम्हारे लिए नहीं है। उस दिन के बाद से मैंने हल्के रंग पहनना शुरू कर दिए। अब मुझे जाहिद की आंखों में अपने लिए नफरत और हकारत नजर आती थी। एक दो दिन गुजरे थे कि वो पीली पीली गोलियां लेकर आए और बहुत प्यार से मुझे सामने बिठाकर थमा दी। वो छोटी छोटी गोलियां पुड़िया में बंद थीं, जिन्हें मैंने फौरन थाम लिया। इन्होंने कहा कि रोज दिन में 3 वक्त की गोलियां लेनी है, इससे मेरा रंग अच्छा हो जाएगा। मुझे लगा कि ये गोलियां मेरी जिंदगी बदल देंगी। मेरा रंग अच्छा होने के बाद वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, इसलिए मैंने भी उन्हें हिफ्फत यकीन की दौलत की तरह थाम लिया। एक अजीब चीज इस दौरान और भी हुई। जाहिद ने घर से सारे शीशे उतार दिए। मुझे हैरानी हुई, मगर मैं पूछ नहीं सकी। वक्त गुजर रहा था, मुझे कुछ जिस्मानी बदलाव भी महसूस हुआ। मेरे हाथ और पैर हद से ज्यादा थे, मगर मेरी नजर अब काफी कमजोर सी हो गई थी। बालों का रंग भी सुनहरी सा शुरू होने लगा। लेकिन जाहिद मेरे साथ वैसे नहीं रहते, हर वक्त हंसते रहते। अब मुझे उनकी आंखों में नफरत नहीं, कुछ और दिखाई देता था, और वो जज्बा मैं समझ नहीं पा रही थी। सब वो मुझसे अक्सर पूछते कि मैंने दवाई खाई या नहीं, खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन एक दिन मेरे साथ वो हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं घर की सफाई कर रही थी। मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई भी कर लूं, क्योंकि सर्दियों की आमद थी। मैं सफाई कर रही थी, वहां मेरी नजर एक टूटे हुए शीशे पर पड़ी, जो पता नहीं कैसे वहां आया, मगर वो काफी छोटा था। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें आपसे पीछा छुड़ाने के लिए अगला हर वक्त कोशा रहे। ये सोचते ही मैं अपने कमरे में आ गई। आंखों से आंसुओं का चश्मा बह रहा था। मैं खिड़की में खड़ी थी। इससे पहले कि अपनी नब्ज काटती, मुझे एक आवाज आई, मुसलसल हंसने की आवाज, जिसने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो वहां एक छोटा बच्चा था जो बैसाखी के सहारे चल रहा था। उसकी टांग सिरे से थी ही नहीं। उसे हंसता देखकर यकदम मुझे इजहारे नदामत ने आन घेरा। कितने बड़े गुनाह की मुर्तकिब कितने बड़े गुनाह की मुर्तकिब होने जा रही थी, जो अपनी जान लेने चली थी। उस वक्त मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। फिर सोचा कि ये मुझे ऐसे आजाद करेंगे भी नहीं। अगर इतनी हिम्मत होती तो अब तक कर चुके होते, ये दवाइयाँ और ऐसी हरकतें न करते। अब मैंने सोच लिया कि कुछ तो करना है, वरना ऐसे कब तक चलेगा। उस दिन मेरे शौहर घर आए तो मैंने कहा कहीं बाहर चलते हैं, जिस पर इन्होंने नागवारी का इजहार किया। अब मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि बाहर जा सकूं। फिर एकदम मेरे जहन में ख्याल आया। अगले दिन जब जाहिद काम से वापस आए, मैं उनका पानी लेने किचन में गई, फिर वहीं जमीन पर पड़ी रही। कुछ देर बाद वो गुस्से से वहां आए, फिर वो मुझे गिरे देखकर परेशान हो गए। फौरन से पेशतर इन्होंने मुझे उठाया और एक लेडी डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ लेडी डॉक्टर ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो मैं फौरन उठ बैठी और अपनी कहानी उसे बताकर मदद की दरख्वास्त की, जिस पर वो राजी होकर दवा लेने से मना कर दिया। फिर मेरे टेस्ट किए और जो बात पता चली उस पर मेरे औसान खता हो गए। मैं उम्मीद से थी और ये बात अब पता चल रही थी। अब मेरे जहन में आ रहा था कि अगर मैं कल खुदकुशी कर लेती तो एक नहीं 2 जानों की कातिल बनती। क्या करने वाली थी। खुदा ने मुझे इस गुनाही कबीरा से बचा लिया था। मैंने डॉक्टर को मना किया कि इस बारे में मेरे शौहर को ना बताएं, मैं मौका देखकर खुद बात कर लूंगी। डॉक्टर ने जाहिद को कह दिया कि ये बस कमजोरी की वजह से है, और मैं बस खामोशी से चली आई। उस रात में फिर से बहुत रोई। अब मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे साथ वजूद ने मुझे वो ताकत दी जो मुझे आज तक कोई नहीं दे सका।
कुछ दिन मजीद बीते थे कि जाहिद घर आए। उनका मूड मामूल से ज्यादा अच्छा था। वो मेरे सामने आए और इतना ऊंचा ऊंचा हंसने लगे कि मुझे एक पल को गुमान हुआ कि शायद उनका जहनी तवाज़ुन बरकरार नहीं है। ऊंची ऊंची आवाज में हंसते हुए इला और मेरे सामने किया। मैंने सर्द आंखों से खुद को देखा, लेकिन वो थे कि हंसे जा रहे थे। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि वो तो कभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बस अपनी माँ की वजह से मेरे साथ थे। मैं उनके लायक नहीं हूँ और आज पूरी दुनिया वो ग्रहण देख लेगी जो सिर्फ वही देखते थे। अब उनके पास मुझे छोड़ने की वजह आ गई है। उस रात मैंने उन्हें अपनी उम्मीद से होने का बताना था कि उन्होंने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी और मुझे गाँव ले आए। सीरत ने अपनी बात कहकर रोना शुरू कर दिया। मैं अपना माथा पीट कर रह गई। मैं कितनी बदबख्त औरत थी जो अपनी औलाद की तरबियत भी ठीक से ना कर सकी। उनसे किसी अच्छे बुरे की तमीज ही याद न रही। आज मैं अपने शौहर से भी शर्मिंदा थी कि आखिर कैसे मुझसे गलती हो गई। मैं कहाँ चौंक गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद मैंने सीरत को अपने जिगर का टुकड़ा बनाकर रखा। उसे अपने साथ रखती, लाड करती, प्यार भी। चंद माह बाद को जन्म दिया, जिसे देखकर मेरे जख्म दोबारा हरे हो गए। उसे भी बिना बाप के पालना था। मैं और सीरत उस दिन भी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। चंद दिन कबल एक आदमी और एक औरत हमारे घर आए थे। मुलाजिमा ने उन्हें बैठक में बिठाया था। मैं हैरान थी कि हमारे घर में कौन मेहमान आ गया, लेकिन उन्हें देखते ही सीरत बिल्कुल हैरान न हुई और फौरन उस औरत के गले जा लगी। वो औरत भी उससे उतने ही प्यार से मिली थी। कुछ देर बाद जब वो दोनों अलग हुई तो मैंने इस्तफसार किया कि कौन है बेटा, जिस पर सीरत ने मुझे बताया कि ये उस घर की मुलाजिमा और चौकीदार हैं जहाँ जाहिद रहता है। जाहिद का नाम लेते उसकी आंखों से सारी रोशनी एकदम बुझ गई और एक महरूमी आ गई। वो दोनों सीरत से मिलने आए थे क्योंकि वहाँ उसका रवैया इन दोनों से इतना अच्छा था जो उसकी याद उनको यहाँ तक ले आई। मैंने खुद को बहुत रोका, मगर माँ का दिल कितना मजबूर होता है। इस दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने पूछ लिया कि मेरा जाहिद कैसा है। इस सवाल पर वो दोनों खामोश हुए। फिर बताया कि जाहिद को भी अपना फल मिल चुका था। सीरत को जब वो अपने साथ शहर लेकर गया तो उस वक्त वो एहसासी महरूमी का शिकार था कि उसकी बीवी अच्छी शक्ल सूरत की मालिक नहीं है। वो कैसे इसके गुजारा करेगा। सीरत के बदलते नकूश दिन ब दिन उसे खुश कर रहे थे। उसके ज़मीर को मुतमईन कर रहे थे कि जो उस पर बीती है उसका बदला वो ले रहा है, वो भी सूद समेत। लेकिन एक एक दिन गुजरने के साथ वो अपनी अना को तस्कीन दे रहा था। फिर जब उसे लगा कि काफी कुछ हो चुका है और उसका दिल भर गया है, उसने फैसला किया कि इस लड़की के चेहरे पर मायूसी भी देखी जाए जैसा लगता है। उसके बाद उसे गांव छोड़कर चला गया ताकि उसकी माँ, जिसने उसकी परवाह न की, उसके बारे में नहीं सोचा, वो लोगों की बातें सुने, उन्हें जवाब दे। आखिर उसे भी तो पता चले बातें और ताने कैसे होते हैं। आखिर जैसा लगता है जब कोई बिना गलती के आपको सजा दे। सीरत को गांव छोड़कर आने के बाद जाहिद ने इस जगह की एक नाजुक अंदाम हसीना के साथ अपना दिल उसके हवाले किया, जो उसकी कई रातें रंगी थी। उसके साथ निकाह के बंधन में बांधकर वो उसे घर ले आया और वो कमजोर लड़की थी। वो उसे महल की मलिका का दर्जा दे चुका था। इसके साथ भी वही सब करना शुरू किया जो सीरत के साथ होता था। सारा सारा दिन घर में रखना, घर के काम करवाना, मगर एक अच्छी बात कि वो उससे प्यार करता था। वो लड़की एक आजाद बुलबुल थी। कब तक उसके कैद खाने में रहती। एक दिन मौका पाकर उठी जब जाहिद सो रहा था। सारा जेवर और पैसा इकट्ठा किया और बैग में रख लिया। अपने आशिक को फोन करके बुलाया और उसके साथ घर से भागने का मंसूबा बना लिया। मगर खुदा की करनी, ऐन वक्त पर जाहिद उठ गया। इससे पहले कि वो कुछ और करता, उसके आशिक ने उसे मारना पीटना शुरू किया। एक कारी ज़रब ऐसी लगी कि सारा गाल चीर कर रख दिया। जाहिद के बेहोश होने के बाद वो दोनों वहां से भाग गए। अब जाहिद के चेहरे पर वही ग्रहण था जो वो सीरत को देना चाहता था। ये बात सुनकर सीरत और मैं दोनों ही अश्वार थे, कुछ ना कह सके। आज सीरत पहले जैसी हो चुकी थी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। इलाज ने सब मिटा दिया था। एक हुस्न था जो देखने वाले की आंखें चुंधिया देता। कुछ दिन बाद जाहिद अकेला आया और मुंह ढका हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो सीरत को यहाँ छोड़कर गया था। अपना बेटा देखने के बाद वो ऐसा था जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। उसने सीरत के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगी, लेकिन वो बिना कुछ कहे अंदर चली गई। अब वो उसके कदमों में बैठा था और कह रहा था, सीरत मुझे माफ कर दो। और मैं सोच रही हूँ, ऐसे किसी को इतनी तकलीफ देना, एक तरह से बेमौत मार देना और फिर आकर आसानी से माफी मांग लेना, क्या इतना आसान होता है सब? वो जो कुछ कर चुका था वो सीरत का, अपना और अपनी औलाद का गुनहगार था।